সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন রিজিওনাল কংগ্রেস ওয়ার্ল্ড সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন রিজিওনাল কংগ্রেস কলকাতায় এবার এটা এই প্রথমবার হচ্ছে। এত বড় কংগ্রেস যেখানে 24টা দেশ থেকে এটা অনেক সাইকিয়াট্রিস্টরা পার্টিসিপেট করেছে এবং এই 24টা দেশের মধ্যে শুধু সাইকিয়াট্রিস্টরা নয়, অনেক মনোবিদও এসছেন। তার থেকেও বড় কথা, টোটাল নাম্বার অফ সাইকিয়াট্রিস্ট অলমোস্ট 2000 সাইকিয়াট্রিস্ট কিন্তু আমাদের এখানে পার্টিসিপেট করেছে। এবং স্যার যেটা বললেন, এই 2000 পার্টিসিপেট করেছে শুধু নিজেদের এনরিচ করার জন্যও নয়, এরা ফর দি কজ অফ দি সোসাইটি। আজকে কিন্তু মেন্টাল হেলথ ওয়াকে তাদের মধ্যে শতকরা 50 জনই পার্টিসিপেট করেছে। তাহলে মানসিক রোগ নিয়ে কেন আমরা এত ভাবছি? তার কারণ এতে কী কী সমস্যা হচ্ছে, তার কারণ আমরা জানি ভারতবর্ষের স্ট্যাটিস্টিক্সে বলছে ট্রিটমেন্ট গ্যাপ, মানে যেখানে কত পার্সেন্ট লোক প্রপার চিকিৎসা পায় না, যাদের মানসিক ইলনেস থাকে, সেটা হচ্ছে 85%। শতকরা 85 জন লোকই কিন্তু মানসিক চিকিৎসা পায় না প্রপার, মাত্র 15 জন পায় 100 জনের মধ্যে। কেন? অনেকগুলো কারণ আছে তার। একটা প্রধান কারণ হচ্ছে স্টিগমা। এবার এই স্টিগমাটা নিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে স্টিগমা দূরকরণের জন্য যেমন আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি, আজকে যেটা আমরা মেন্টাল হেলথ ওয়াক করেছি, এটা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। এই মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে আমাদের মধ্যে এসেছিলেন এডিজি সঞ্জয় সিং পুলিশের, সেলিব্রিটি নুসরাত জাহান এমপি এবং ফিল্ম অ্যাক্ট্রেস, সুদীপ্তা চক্রবর্তী ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনার। তারা ফর দি কজ তারা আমাদের সাথে পায়ে পায়ে মিলিয়ে হেঁটেছে, শুধু লোককে বলার জন্য যে মানসিক রোগও কিন্তু অন্য 10টা রোগের শারীরিক রোগের মতো। আপনি যদি ঠিক সময় তার চিকিৎসা করেন, সেটা সেরে যায়। যদি আপনি স্টিগমাটাইজড হয়ে সেই রোগটাকে লুকিয়ে রাখেন বা আপনি রোগটাকে ধরতেই পারছেন না আপনার অ্যাওয়ারনেস কমের জন্য, সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্যাটাস্ট্রফি বা যদি তার পরিণতিটা অনেক বেশি খারাপ হয়। সেই জন্য আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে অ্যাপিল থাকে, যদি কোনো মানসিক সমস্যায় ভোগেন, এটা অন্যান্য শারীরিক রোগের মতো একটা সমস্যাটা হাওয়া থেকে আসে না, এটা আমাদের ব্রেনের থেকে আসে। এর জন্য চিকিৎসা দরকার। আর কি কারণে আমাদের যে মানসিক রোগের সমস্যা এতটা ট্রিটমেন্ট গ্যাপ? সারা পৃথিবীতে আমরা স্টাডি করে দেখেছি, যেখানে ডেভেলপ কান্ট্রিতেও আমাদের একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দরকার প্রতি 2000 লোকের জন্য। সেখানে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে প্রতি 10,000 লোকের জন্য একজন সাইকিয়াট্রিস্ট, এবং সেটা হিউজ গ্যাপ। সেরকম মানসিক মনোবিদ বা অন্যান্য মেন্টাল হেলথ ওয়ার্কার্স যারা আছে, তাদেরও অনেক সংখ্যায় কম। সেই জন্যই প্রপার ট্রিটমেন্ট তারা পৌঁছতে পারে না বা যেতে পারে না। এই জন্যই এটাও ঠিক, এটাকে ওভারকাম করার জন্য কোনো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা কোনো অর্গানাইজেশনের চেষ্টা বা এনজিওদের যে প্রচেষ্টা বা শুধু মিডিয়ার প্রচেষ্টা বা যে কোনো সরকারি প্রচেষ্টা একাত দিয়ে হবে না। এটাকে লড়তে হলে, এর বিরুদ্ধে লড়তে হলে, এই স্টিগমার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে বা সামগ্রিকভাবে এই মেন্টাল হেলথের উন্নতি করতে গেলে কিন্তু আমাদের সবাইকে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে হবে। আমি খুব ধন্যবাদের সাথে জানাচ্ছি যে আজকাল এই মিডিয়ার একটা ইম্পর্টেন্ট রোল, যেটা আমাদের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর আফজল জাভেদও বলেছেন, একটা ইম্পর্টেন্ট রোল থাকার জন্য কিন্তু এখন যে স্টিগমাটাইজ, ধরুন আজ থেকে 25 বছর আগে ছিল, এখন কিন্তু তুলনায় অনেক কম, বাট স্টিল ইট ইজ দেয়ার। আর এই স্টিগমাটা শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বেই আছে। এবং যেটা স্যার বললেন যে এখনও পর্যন্ত 2 নম্বর 3 নম্বরে আছে ডিপ্রেশন, অবসাদ রোগ, কিন্তু 2030-এর প্রজেকশন অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি বার্ডেন হবে, অর্থাৎ চিকিৎসার কষ্টকর সবচেয়ে বেশি মানুষ সাফার করবে ডিপ্রেশনের জন্য, সেটা 1 নম্বরে আসবে। তাই প্রতি 4 থেকে 5 জনেরই কিন্তু একজন কারো না কারোর এই মানসিক সমস্যা দেখা দেয় জীবনে কোনো না কোনো সময়। সেই জন্যই
আমাদের আপনাদের কাছে আবেদন, জনসাধারণের কাছে আবেদন, যখনও কোনো মানসিক সমস্যা হয় ফার্স্ট কাজ করবেন আপনি শেয়ার করবেন আপনার কাছের লোকটার কাছে। তারপরে সেই সমস্যাটা যদি নিয়ে আপনার খুব সমস্যা হয় আপনি মনোবিদ বা মানসিক চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন। এই মানসিক রোগের কারণে প্রতি 44 সেকেন্ডে 44 সেকেন্ডে একটা করে সুইসাইড হয়। আর ভারতবর্ষে সারা বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয়তম স্থান আফটার চায়না। চীনের পরে ভারতবর্ষে কিন্তু সুইসাইডের হার বেশি, এবং মোস্ট অফ দি যারা আত্মহত্যা করেন তাদের কিন্তু বয়স জেনে দেখা যায় 15 থেকে 29 বছরের মধ্যে, অর্থাৎ এটা যুবকদের মধ্যেই বেশি এফেক্ট করে। সুতরাং সব দিক দিয়ে আমাদের নিজেদেরকে, এটা কিন্তু একটা লোককে সুস্থ করে না, মানসিক একটা লোককে যদি তাকে চিকিৎসা করে ঠিক করেন, এটা তার পরিবারকে সুস্থ রাখা, পুরো সমাজটাকে সুস্থ রাখা। তাই আমাদেরকে আগে ধরতে হবে, আগে রোগ মানসিক সমস্যা থাকলে তাকে নির্ণয় করার জন্য রোগ নির্ণয় করাটা আগে করতে হবে এবং তাকে প্রপার চিকিৎসা দিতে হবে। তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের পুরো সমাজটাকে সুস্থ রাখতে পারবো, এবং যেটা ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ভীষণ প্রয়োজন। এবার नया एक तरह की एक नया पैंडेमिक, उसको आजकल हम बोलने लगे। पहले तो एपिडेमिक था, ये पैंडेमिक आके चले गया, अभी मानसिक बीमारी रोगियों की पैंडेमिक आ गया। तो हमारे देश में तो हमेशा एक अच्छा बात था कि फैमिली की सपोर्ट। अभी भी जो वेस्ट जो बोलते, जो डेवलप्ड कंट्रीज से देखे तो हमारे देश में, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, सब 7 कंट्रीज में स्किज़ोफ्रेनिया आए तो पूरा फैमिली वाले उनको संभाल के फिर वापस नॉर्मल लाइफ में आए। वो जॉइंट फैमिली तो हम सपोर्ट करना चाहिए। पर आजकल सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं, जो स्टिग्मा रिडक्शन तो आपके हाथ में ही है। हम समझते हैं कि जो डेमोक्रेसी की 4 में तो आप ही है फर्स्ट एक, क्योंकि आप अनबायस्ड हैं। पॉलिटिशियंस आते जाते हैं, लॉस आते जाते बदलते जाते हैं, पर आप तो परमानेंट हैं। सुसाइड के बारे में और मेंटल इलनेस के बारे में पॉजिटिव, मेंटल इलनेस इज़ क्यूरेबल। उसके लिए आज जो वॉक हुआ था, करीब 2000 लोग आए थे, सब पब्लिक से आए थे, और वो लोग बोलते थे मेंटल इलनेस इज़ क्यूरेबल, मेंटल इलनेस इज़ ट्रीटेबल, मेंटल इलनेस के लिए स्टिग्मा मत करो। उस तरह करके वी हैड अबाउट 1 आवर। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इन्हों तो पूरा लास्ट 3 साल से इन्हों वर्ल्ड प्रेसिडेंट है, पूरा दुनिया पूरा घूमे, पूरा वर्ल्ड घूमे, कहीं भी इस तरह जो हम किया था, जो मेंटल इलनेस की अवेयरनेस रन में इतने लोग आके सुन के, वो भी सुबह 5 बजे को आए थे, 5:30 बजे से शुरू हुआ तो 8 बजे को ख़त्म किया था पूरा। तो इस तरह हम कभी नहीं देखे। ये तो इंडिया और कलकत्ता की हम खास बोलते हैं कि हम जो भी करें यहाँ, हम दोनों मिलके हमारी टीम, ये कलकत्ता की टीम बहुत अच्छा टीम, वो करके कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड कांग्रेस तो एक तरह से सक्सेस हो गई। पर सक्सेस आपके जरिए में हम खाली यही चाहते हैं कि मेंटल इलनेस तो क्यूरेबल है, मेंटल इलनेस दवाई भी डायबिटीज़ की तरह खानी चाहिए। और 2 बात तो हमारी गौतम ने बोला था कि 85% ऑफ पीपल कम लेट, आता ही नहीं। 2 साइकियाट्रिस्ट रहते हुए एंड शॉर्टेज की साइकियाट्रिस्ट के अलावा वो आने में देर हो गई। दूसरी बात आपके ज़रिए में हम पब्लिक को पहुंचाना चाहते हैं कि जब तक डॉक्टर बोले तब तक दवाई खाया करो। ये दवाई भी आजकल जैसे पिछले 20 साल से 25 साल से जो आया है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। डिप्रेशन ट्रीटेबल है, एंग्जाइटी ट्रीटेबल है, स्किज़ोफ्रेनिया भी ट्रीटेबल है, बाइपोलर, और मैं बोला आजकल की अल्कोहल एडिक्शंस एंड सुसाइड भी प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल माने हम ट्रीट कर सकते हैं। तो जल्दी आया करो। और एक और बार सहस्र नमस्कार, 1 नहीं 2 नहीं, सहस्र, इसलिए कि आपके ज़रिए में मैं देख रहा था, वहीं हमारी इंडियन साइकियाट्रिक कांग्रेस हुआ था भुवनेश्वर में, वहाँ तो केवल 15-20 आया था। यहाँ देखे तो 50 करीब आप आए थे। आपके ज़रिए में सबको आप यही मैसेज है दैट साइकियाट्री इज़ द मोस्ट नीडेड। एंड हम ज़्यादा टाइम नहीं बात नहीं कर सकते, पर स्ट्रेस की मैनेजमेंट, मैरिटल प्रॉब्लम, ये सब भी नया मुसीबत है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन। थैंक यू। मैं एशिया फेडरेशन ऑफ साइकियाट्रिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ, उसकी ओर से भी बहुत धन्यवाद।
जैसे अभी तक हमारी वर्ल्ड प्रेसिडेंट प्रोफेसर अफजल जावेद साहब भी, उसी तरह गौतम साहब करीब भाई जैसे हैं। हम दोनों बहुत 10 साल से करीब मिल के काम कर रहे हैं। सबसे खुशी दिन हमको इसलिए है कि यहाँ भारतीय हिस्ट्री में कलकत्ता में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन की मीटिंग हो रहा है। यहाँ मीटिंग की मतलब क्या होगा? मतलब तो 4-5 तो मेन है। एक तो दुनिया की करीब कनाडा अमेरिका से उस साइड से ऑस्ट्रेलिया तक, इस साइड एशिया, पूरा एशिया से डॉक्टर और साथ की डॉक्टर्स, सब डॉक्टर्स जो साइकियाट्रिस्ट है, जो रिसर्च क्या करे से पिछले 4-5 साल की जो इम्पोर्टेंट रिसर्च यहाँ प्रेजेंट करने आया है। उसमें देखे तो यहाँ तो 110 वर्कशॉप्स हैं। ये वर्कशॉप की मतलब जूनियर साइकियाट्रिस्ट को सिखाना, क्या सिखाना, नया स्किल्स सिखाना। दूसरा 86 सिम्पोजियम्स है जो रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं। मैंने आज के ज़माने में, जैसे डॉक्टर साहब, मैं 1 सेकंड में मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या नया है। तीसरा जो है, जो यंग साइंटिस्ट है, माने जो 5 साल के अंदर जो पास हुआ MD साइकियाट्री जो पढ़ रहे हैं, उसकी रिसर्च पेपर 120 प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक 50 पोस्टर्स बोलते हैं, माने खाली एक पेपर में 1 साल में क्या क्या किया वो रिसर्च प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कल पूरा दिन यंग साइकियाट्रिस्ट को कैसे लीडरशिप बनाओ, साइकियाट्रिस्ट में कैसे अच्छा सिखाऊं, क्या क्या स्किल्स सिखाऊं, क्या क्या करे, क्या क्या नहीं करे, उसके बारे में सबसे हमारी 1985 की वर्ल्ड प्रेसिडेंट है, जो उनकी 85 साल है उनकी उम्र। अब देखना पड़ेगा उनको, इतना जवानी में चल रहा है, वो 4 घंटे तो सिखाए उनके एक्सपीरियंस। और उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की एक महान हमारी साइकियाट्रिस्ट मोहन आइजैक भी। तो इसके अलावा 3-4 चीज़ तो हम आपको तो पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपसे मांग ये की है कि आपके ज़रिए पे मानसिक रुग्मता जो भी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की समान है। मैं ये बात बोले तो इस तरह समझना है कि डिप्रेशन भी हार्मोन्स की कमी से होती, स्किज़ोफ्रेनिया भी हार्मोन्स की फ़र्क से होती। और आप सुना होगा अल्कोहल, दारू, एडिक्शंस जो आजकल हमारी पूरा देश में तो फैल रहे हैं, वो भी एक दिमाग की, जो सब लोग तो एडिक्ट नहीं होते ना, कुछ लोग ही होते। तो दारू पीने वाली सब बीमारी नहीं है, जो एडिक्ट होते उसको बीमारी है। सुसाइड के बारे में अभी आप सुना है कि हर 44 सेकंड्स में एक सुसाइड हो रहा है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा नंबर है। इनफैक्ट इंडिया, स्पेशली साउथ इंडिया में तो साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु, पांडिचेरी, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला मैक्सिमम सुसाइड है इंडिया में देखे तो उसके लिए वजह क्या है, उसको कैसे प्रिवेंट करना, वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्पोजियम यहाँ चल रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया की असर क्या है, आप सबको मालूम है, मैं आपको सिखाने वाली नहीं हूँ। सोशल मीडिया में तो पॉजिटिव भी आ रहे हैं तो बहुत नेगेटिव भी आ रहे हैं। आजकल नया ज़माने की एडिक्शंस क्या है, इंटरनेट एडिक्शंस है, गेमिंग एडिक्शंस है, गैम्बलिंग है, पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग। जैसे आप मोबाइल में पकड़ के आपको क्रेडिट कार्ड रहे तो लाखों लोगों को के उसको पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग एक नया बीमारी फैल रही है, नया माने 5 साल में सबसे ज़्यादा है। आपको शायद मालूम नहीं है कि कोविड तो आके थोड़ा बहुत चले गई, अभी भी थोड़ा इधर उधर दिख रहे। कोविड आए से फैमिली जो मर गए फैमिली को उसकी से डिप्रेशन, पर वो नहीं, कोविड आके चले जाने वाले को 3 गुना बीमारियां बढ़ गई हमारे देश में। लास्ट 2 साल की रिसर्च में ये तो मालूम हो गया कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, दारू, सुसाइड, ये 4 बीमारियां स्पेशली 15 to 30 ईयर्स के बीच में